ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚ ਜਾਣਾਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦ ਜਗਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਪਰਮ ਪਲਾਹੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਸ ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਘੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਛਿਲਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗਿਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਦ, ਜੋ ਲੱਜਤ ਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਭਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ
अनेक ही लख बोले गए। अगर सारे सचमुच ये महात्मा होण तो दुनिया विच बिल्कुल शांति हो जाए, परमार्थ दा हड़ आ जाए, कोई किसी दे नाल ईर्ष्या ना करे, जो समाजां दा साडा झगड़ा है ये खत्म ही हो जाए। जब सारे संत हो जाण तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ समझाउण कि परमात्मा तुहाडे अंदर है, ਉਹਦੇ मिलण दा साधन और तरीका अंदर है, तो लड़ाई काहदी है बई, झगड़ा काहदा है। सचखंड पहुंचे नूं संत कहंदे है, तो इस दा अभ्यास करन वास्ते, सचखंड पहुंचण वास्ते संत मत कहंदे है। सो इस वास्ते संत महात्मा होका दिंदे गए है कि शब्द ने दुनिया की रचना की, शब्द के सहारे दुनिया खड़ी है, शब्द ही इसकी पालना करी जा रहा है। सो स्वामी जी महाराज का शब्द थोड़े अगे रखा जाता है, गौर ना सुनो। बचन नावा महिमा शब्द स्वरूप सतगुर की। शब्द पहला सार बचन पन्ना 87। तन 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। तन 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। आप कहने लगे शब्द उस ताकत नूं कहा है, गाउण बजाउण वाले नूं नहीं कहा गा, लिखण पढ़न बोलण वाले नूं नहीं कहा गया गा। बाहर आहद शब्द है, अंदर अनहद शब्द है, जिसकी कोई हद नहीं गी। आहद शब्द कहते हैं जो लिखण पढ़न बोलण विच आ जाता है। सो इस वास्ते आप कहते जिस शब्द की मैं तुहानूं महिमा करदा हां, वो शब्द सारी दुनिया नूं सता दे रहा है, सब दुनिया उसके सहारे चल रही है। कोई ऐसी जगह नहीं कि जिन्हों वो ताकत नहीं दे रहा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। आप कहते वो परमात्मा शब्द के जरिए ही दुनिया की रचना पैदा करता है। जदों अपना शब्द किसी विच उठा लेंदा है, दुनिया चो उठा लेंदा है, तो मृत्यु हो जाती है। वो शब्द ही है जिहड़ा कि कण कण दे विच व्यापक है, कण कण नूं मदद दे रहा है। किसी गाउण बजाउण वाले शब्द नूं या अक्षर नूं ये ताकत नहीं कि वह दुनिया की सहायता कर सके या दुनिया की मदद कर सके। इस वास्ते वो अनहद शब्द है। वो कद मिलता है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 मैं निज कर वासा पाए। साडे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 अखां दे सुराख है, 2 कन्नां दे सुराख है, मूँह है, हेठ 2 इंद्रियां दे सुराख हैं। इन्हां दे अंदर जो लजता हैं वो फिकियां हैं, वो दुनिया दे विच फसाउण वास्ते हैं। कहण लगे जदों तुसीं सिमरन करके इन्हां 9 द्वारियां दे विचों अपना ख्याल कढ के इत्थे अखां दे पिछे आ जांदे हो, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 मैं निज कर वासा पाए। जब असीं इस जगह पहुँच जाते हैं जिथे कि वो परमात्मा की आवाज़ आ रही है, अपनी आत्मा तो अस्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला लेने हैं। कह लगे असीं 10वें द्वार विच पहुँच जाते हैं, उत्थे आत्मा है। आत्मा का जो प्रकाश है वो बयान तो बाहर है। आम शास्त्रां दे अंदर 12 सूरज का करके बयान किया है। इत्थे असीं एक सूरज की तरफ नहीं देख सकते थे, उत्थे इतने सूरजां का प्रकाश है इस आत्मा का। इत्थे पड़दियां दे अंदर गुम है। महाराज जी दसदे हुंदे सीगे, जिस तरह एक लंप है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत सारे ਆਪਾਂ टाट ਦੇ पड़दे चढ़ा दईए, किसी भी कमरे ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ अंधेरा ही अंधेरा है। ਜੇ ਅਸੀਂ जुगती ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ तो लैंप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਗਦਾ है, वो पूरा मकान रोशनी ਨਾਲ भर जाएगा। इसे तरह साड़ी आत्मा का कोई प्रकाश थोड़ा जा नहीं गा, तो परमात्मा के प्रकाश का तो बयान ही की करना है। सो इस वास्ते आप कहने लगे ये इन्हां पड़दियां दे अंदर टकी हुई है। 25 प्रकृतियां हैं, मन है, माया है, ये सारे दे उत्ते
ਕਾਲ ਖਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੋਝਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਕੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਪਰਦੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਾ ਔਰਤ, ਨਾ ਮਰਦ। ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਨ 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 ਪਿਆਰੇ, ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਜੋ ਪਰਚੇ हैं शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की। ਸੰਤ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਤਵ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਬਲ ਅਲਹਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਹੀ ਨੂਰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਭਰਾਵੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਹੀਏ? ਉਸੇ ਨੂਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਨੂਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੋ ਮਹਿ ਸਮਾਹੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੂਬ ਰੋਬ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਇਆ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਖ ਪਰਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਤ ਹੰਸ ਹੰਸ ਆਪਦਾ ਕਬੂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾ ਆਦ ਨਾ ਅੰਤ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਤੋ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ। ਇਨਸਾਨ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਜੋ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਸਭ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो आप कहने लगे एक दूसरे के दुश्मन हैं। पानी धरती नूं आप दे विच समा लैंदा है, रला लैंदा है, खोर लैंदा है। और जो अग्नि है वो पानी की दुश्मन है, खुश कर दिंदी है। और अग्नि नूं हवा उड़ा के ले जाती है, ये ओदी दुश्मन है। और हवा आकाश दे विच जाके समा जाती है। लेकिन वो शब्द की ताकत विच होण करके ये 5 तत्त इंसान के अंदर काम कर रहे हैं, ये ओदी रखिया होण करके काम कर रहे हैं। सो इस वास्ते जिन्हां महात्मा दी अखां खुल जांदियां वो दसदे आ कि देखो प्यारिओ ये ओदी रखिया है, ओदी दया है, किवें 5 चीज़ां काम कर रही हैं। फिर ओदी रचना बड़ी विचित्र है, जिहदी महिमा बयान नहीं कर सकते कि किस तरह उन्हें किसी विच 2 तत्त, किसी विच 1 तत्त, किसी विच 3, किसी 4, इंसान दे विच 5 रलाए है। एक इंसान की दूसरे नाल शक्ल नहीं रलदी। हत्थां दीयां जो लकीरां हैं कोई सैकड़ियां दे विचों एक अद्धे दीयां मिल जाण तां की कहना है, नहीं तो हत्थां दीयां लकीरां नहीं मिलदियां गईयां, अखां नहीं मिलदियां, नक्श नहीं मिलदे गए। इस तरह जानवरों की शक्ल एक दूसरे नाल नहीं मिलदी गी। ये उसकी यही विचित्र महिमा है। सो आप कहने लगे जो शब्द दे विच परचे है वो शब्द की महिमा जानते है। आप कहने लगे साह साह ना वो रखिया करता है,
कि असीं शब्द की महिमा करिए जी। छिन छिन रखिया हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। बिन शब्द फिरे परमातियाँ, न जानी गत मत शब्द की। जब तक असीं अंदर नहीं जाते गए, शब्द नूं प्रगट नहीं करते गए, उन्ना चिर साड़ियां अखां दे अगों भरम नहीं जा सकदा। भरम किहड़ा है? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ दिन रात ही अखां नाल देख रहे हैं, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है। जब अंदर जाने सानू पता लगता है कि इन्हां विचों साडा कौन है। अनेकां राजे महाराजे इस संसार विच आए, खाली हथ करके चले गए हैं। पता नहीं किन्नियां किने आके इस धरती के वारस बनना है। महात्मा कहते जो धरती है एक वेसबा दी न्याई है, अनेक ही ये मालक बनते हैं और बन बन के तुरे जाते हैं। दुनिया कह करके छड़ जाती है, असी उस छुट्टण वास्ते बैठे हैं, असी इत्थे कह करके छड़ जानी है। सो की पुत नाल जाता है, कि औरत जाती है, कि समाज नाल जाता है, किहड़ी चीज़ भी नाल जाती है, कि इदों वध होर भरम की हो सकता है। असी सारी जिंदगी इन्हां दे पिछे किहड़ी किहड़ी कुर्बानी नहीं करते, किहड़ा किहड़ा असूल कुर्बान नहीं करते गए। होर तां होर मौत नूं भुल जाते हैं। वो प्रभु जिहड़ा साडे उत्ते दिन रात दया करदा है, असी उस नूं भी भुले बैठे हैं। इदों वध की भरम होएगा। सो इस वास्ते संत महात्मा सानूं दसदे है कि जब तक असी अखां तो बाहर बैठे हैं, शब्द दे नाल जुड़दे नहीं, उन्हां चिर असी भरम विच फिरदे हैं। कोई किसी पासे दौड़दा है, कोई किसी पासे दौड़दा है, किसी थां साडी कोई शरधा नहीं। कदे तुसी देख सोच के देख लो, हरद्वार वाले कटासराज नूं जांदे है, कोई ऋषिकेश नूं जांदा है, उथों वाले कटासराज वाले ऋषिकेश नूं आ जांदे है। इसे तरह कुरुक्षेत्र वाले हरद्वार नूं जांदे है, हरद्वार वाले कुरुक्षेत्र नूं आ जांदे है। ना उन्हां दी उत्थे शरधा, ना उन्हां दी उत्थे शरधा है। अगर साढ़े अंदर शब्द प्रगट हो जाए, असी शब्द की कमाई करिए, तो सानू पता है कि वो जिहड़ा सच्चा तीर्थ है साढ़े अंदर है जी। बिन शब्द फिरे परमातियाँ, न जानी गत मत शब्द की। जिन गुर पाया शब्द का, और प्रीत करी जिन शब्द की। वड पागी वे जीव हैं, जो करे कमाई शब्द की। हुण स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्हें इंसान का जामा पा के शब्द नूं प्राप्त किया, शब्द की कमाई की, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਲਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸੇ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾ ਸਹਾਏ, ਚਾਹੇ ਸੋਵੈ ਚਾਹੇ ਚੱਲੈ, ਚਾਹੇ ਦੀਏ ਬਾਤ ਚਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋਂ ਖਾਣਾ, ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਹਾਏ। पापी आत्मा ने खुद तो भगती की करनी सी, उन्होंने भगती करने वाले भी चंगे नहीं लगते गए। मक्खी चंदन पर हरै जै दुर्गंध तै जाए। मक्खी बुश कपूर ते बैठती नहीं, उड़ जाती है और गंदे ते सारा दिन पिण पिण करती रहती है। इस तरह जिथे शराब कबाब है, चुगली निंदिया किसी की हो रही है, उत्थे असीं दौड़ के जाने, ना उत्थे नींद आउंदी है, ना आलस आउंदा है, ना दिल ही उदास हुंदा है।
इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं कि गंदे ते जिस तरह मक्खी सारा दिन भिण भिण करती है, असी उस जगह पर जाके बैठते हैं जिथे कि साढ़े होर पाप भारे हो रहे हैं, निंदिया सुनते हैं, शराबा कबाबा के वक्त ला रहे हैं। सो जिथे नाम का होका है, नाम का प्रचार है, उत्थे भी भाग ही होणगे तो असीं जावांगे, उदों उच्चे भाग होणगे तो साढ़े बात समझ विच आएगी। महात्मा कोई ऐसी बात नहीं बोल देगे कि जिहड़ी साडी समझ विच नहीं आवे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि मुक्ति के 3 साधन है। किहड़े है? भजन है, सिमरन है, ध्यान है। जिहड़ा गुरु साहब कहते कि प्रभ का सिमरन गर्भ न वसै। सिमरन के उत्ते अष्टपदी सारी लिखी हुई है। किन्नी सिमरन की महिमा है। हर सिमरन में आप निरंकारा। तो कहने लगे तुसी जो संत सिमरन दिंदे वो करो, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਂ ਤਪ ਤਿਆਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो सिमरन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान, ਉਹੀ सच्चा मंत्र है। महामंत्र करके गुरु नानक ने इस सिमरन ਨੂੰ ਕਿਹਾ है। अगर स्वरूप ना होवे, ध्यान जाएगा सिमरन के जरिए, उत्थे रुकेगा नहीं। अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को। मूर्त का भाव स्वरूप तो है। ये नहीं कि असीं कागज और गत्ते दीयां तस्वीरां रख लियां उहदा ध्यान करन लग पे। महाराज सावण सिंह नूं किसी ने पूछा सीगा कि जी की बहुत सारे सत्संगी जिहड़े है वो तुहाडी पिक्चर का फोटो का ध्यान करते हैं। महाराज कहने लगे जे फोटो का ही ध्यान धरना तो पिछले महात्मा का ही कर सकते हो। वो कहते फोटो के ध्यान ना कुछ नहीं बनता गा, फ्रेम आ जाएगा, कागज आ जाएगा, लेकिन वो मूर्त तुहाडे नाल गल्लां नहीं करेगी। गुरु जागदा पुरुष हुंदा है, स्वरूप का ध्यान करना है। सो इस वास्ते आप कहने लगे धुन, जो सिमरन के जरिए इस जगह रुक जावांगे, जाके रोज थाना बना लवांगे तो धुन जो सचखंड तो उठती है वो इत्थे आ रही है। जब इत्थे पहुंचांगे शब्द साडे अंदर प्रगट होएगा, जो खिंचण वाला शब्द है आत्मा नूं चुंबक की तरह आपदे नाल मिलाएगा। सो इस वास्ते महात्मा सानू स्पष्ट लफ्जां दे नाल सिखाउंदे आ कि भरावा मुक्ति के 3 साधन है। बाकी जितना भी असीं कर रहे हैं वो मालक तो दूर जाण दा समान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा फरीद साहब ने किन्ने तप कीते। 12 साल काठ की रोटी बन्नी फिरिया, कुएं विच लपक जांदा बेचारा, जंगलों सारी उम्र गुजारी। आखिर जब अंदर जाण वाला महात्मा मिलिया, शब्द दिता, नाम दिता, तो उन्हें होका दे के क्या जंगल जंगल क्या ढूंढे वन कंडा मोड़े। क्यों कंडा ते पैर धरदा फिरदा है। वसे रब हियालिया जंगल क्या ढूंढे। तो प्यारिया रब तो तेरे अंदर वसदा है, तू जंगलों च इवें फिरदा रहा। जिस भी महात्मा नूं सार मिली, अखां खुलियां, उन्होंने लिखा है। दादू साहब कहते हैं लोग सुनिया सुनाइया गल्लां करते हैं भगवान के मुतलक, असी अखी देख के करते हैं। संत उस परमात्मा नूं जाहरा जहूर हर एक दे विच काम करदा देखते हैं। दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा, लोग सुनिया सुनाइया गल्लां करते हैं। मालिक दे प्यारे उस नूं देख के बयान करते हैं जी। वड पागी वे जीव हैं, जो करे कमाई शब्द की। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। क्यों भाई शब्द नाम की कमाई करनी है? क्यों महात्मा ने साडे गुरु साहिबा ने भगती दे जोर दिता? क्योंकि मन नूं वस विच करना है। मन ना श्रृंगी रिखी दे वस विच आया, ना पारासुर दे वस विच आया। जे मन वस आया हुंदा अज उन्हां दी असीं कहानियां ना पढ़दे प्राणा दे अंदर कि उन्हां ने किस तरह
ਆਪਣੇ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਜੱਗ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਵਾਨੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਿਆਂ ਮਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਦੇਵੇਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਘੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ कहता हूँ आँखी देखी। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। इस वास्ते आप कहने लगे कि शब्द तो बगैर साढ़े अंदरों, क्योंकि मन वस क्यों नहीं आउंदा गा। सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ कि मन कित्थों दे रहन वाला है, ये किस तरह वस होएगा। ਇਹ त्रिकुटी ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇਗੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਕਸਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾरों ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਪਵਾੜੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਖਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟਾਊ ਸੇ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਾਊ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਤੜਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਟਾਊ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਖੱਟਾ ਦੇਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਦੇਵੇ, ਕੜਵਾ ਦੇਵੇ, ਗਰੀਬ ਰੱਖੇ, ਅਮੀਰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्यारे भगती क्यों करनी है? मन वस करने वास्ते, क्योंकि मन ही सानू विषे विकारां च फसाउंदा है। मन ही कहता आ जग मिठा, अगला कहन डिठा, अगे जाके किने देखिया है। लेकिन असी अखां नाल इत्थे भी देखते हैं। बाबा बिशन दास कहते हुंदे सीगे कि 18 नरक वेद अंदर बयान कीते हैं ते एक नरक इस संसार विच भी है। वो अच्छी तरह दसदे हुंदे सी। मैनूं कहंदे बेटा तुसीं तीर्थां दे जाके देखो किस तरह कोड़ी पे है, ਜਿਹੜੇ हिल भी नहीं सकते गे, मक्खी भी आप तो नहीं उड़ा सकते गे, कि ये नरक तो घट है। बीमारी आ जाती है, देखे ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ऐसी बीमारी आ जाती है, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਧੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ये नरक तो कम है। सो इस वास्ते संत महात्मा सानू दसदे है। साडे पिछले पिंड दा वाकया सीगा, एक आदमी जवान होया, गंडक पे हुंदे, उन्हें पियां दे डांग मारनी। कोई होर भी जानवर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ ਢੱਟੇ ਝੋਟੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਰਸ਼ੇ ਮਾਰਨੇ।
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਠੜੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕ ਗਠੜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਭੋਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। परमात्मा ने इंसान का जामा तोहफा दिता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, 1,84 भरम त्या मानुख जन्म पाया हो। नानक नाम संभाल तू 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1,84 ਜੀਆ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੂੰ 84 ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा की भगती सिर्फ इंसान का जामा ही कर सकता है, इंसान ही कर सकता है। ना तो पशु कर सकते हैं, ना पंछी कर सकते हैं, ना देवी देवतियां नूं ही ये इख्तियार है। उन्हां दे अंदर भी ये रस्ता नहीं शब्द नाम का कि वो परमात्मा की भगती कर लैन या उस नूं मिल लैन। सो इस वास्ते आप कहने लगे वो इस संसार में की लैन वास्ते आए है, जिन्हां ने परमात्मा की भगती नहीं की, जिन्हां नूं परमात्मा ने भगती का दान ही नहीं बख्शिया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो प्रभ कीए भगत ते वाहां जी तिन से सदा डराने रहिए। कहते जिहड़े प्रभु दी ने आप दी भगती तो दूर रखे होए है भरावो, अगर उन्हां दे कोले तुसीं बैठोगे वो रंग तुहाडे ते इहे जिहे चढ़ा देणगे। कबीर साहब कहते हैं, साकत संग न कीजिए दूरों जाइए भाग, वाशनकारों परसिए तो कुछ लागे दाग। जिहड़े परमात्मा की भगती नहीं करते गए, अगर तुसीं उन्हां दे पास बैठोगे तुहाडू भी उही ख्याल दे देणगे कि तुसीं भगती ना करो। सो इस वास्ते संगत करिए साध की अंत करे नरभाओ। गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, प्यारो अंत समय यही नरभाव वाली वस्तु है। तुसी किसी महात्मा की संगत सोबत दे विच जाओ, किसी महात्मा की संगत जावांगे तो अज नहीं ऐब छड्डांगे कल नूं छड्ड देंगे, अज नहीं नाम जपांगे कल नूं जपांगे। क्योंकि सत्संग दे विच जाके सानूं साडीआं गलतियां दा पता लगदा है। अगर इंसान नूं गलतियां दा पता लगेगा तो उसनूं सुधारेगा भी। इस वास्ते कहते हैं, वो इत्थे की लैन आए बई, जिवें कुत्ते बिल्ले पेट भर के चले गए उवें वो बेचारे चले जाते हैं जी। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। तुन काट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की। आप कहने लगे वो शब्द की आवाज धुन गुरबाणी तेरे अंदर 24 घंटे हो रही है। गुरु नानक देव जी महाराज मक्के गए, काजी रुकनदीन ने उन्होंने उस महल के मुतलक पूछया कि खुदा का महल जो है वो किस तरह है। वो कहने लगे, पहला तो ये वजूद है जिहदे 12 बुरज है, 32 किंगरे हैं। तो परमात्मा इस दे अंदर इस जगह वो बांग दे रहा है, पर दुनिया विषय बकारां दी मौज विच ऐशो इशरता दे विच सुत्ती पई है। सुत्ती पई न भाग, सब सुने ना बांगा कोई, दुनिया सुत्ती पई है। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार दिन बहुत बधाए इनमान। एक महल है, एक दो अखां जो है एक खिड़कियां हैं। बाहर अखां जो है वो फनाह नूं देखदियां हैं, दुनिया नूं देखदियां हैं, लेकिन जो अंदरली अख है वो इन्हां अखां दी मुताज नहीं गी। मैं अपने गुरुदेव की तरफ
मुतलक दसदा हुन्ना कि जिस वक्त मैनू उन्होंने मेहर करन लगे, दया करन लगे, अखां ते हत्थ धरिया, कहंदे बेटा अंदर खोलणियां हन, बाहर बड़ा कुछ देख लिया। इस वास्ते आप कहने लगे कि वो जड़ियां अंदर खिड़कियां है वो महल दियां खिड़कियां हन, लेकिन क्यों नहीं असी अंदर जा सकते? कबीर साहब कहते हैं कि राह खुदा पी हावला वालों दसे पाए, मन तो हाथी हो रहा निकसे क्यों कर जाए। जेड़े खुदा दे मिलण दा रस्ता है, गुरु साहब कहते कि वाल तो 10वें हिस्से के बराबर है, इतना बरीक है। अगर मन नूं इतना बरीक करोगे तो ही उतों दी लंघेगा। हाथी मन तो थोड़ा हाथी बनया खड़ा है। तो इस वास्ते वो कहने लगे देख भी काजी रुकनदीन, वो जिहड़ी बांग है वो सब के अंदर इस जगह आ रही है। कोई खुशकिस्मत जो जीव है बाहरों ख्याल नूं हटा के अंदर जाके शब्द के नाल आवाज़ के नाल जुड़ता है। मुसलमाना ने उसनूं बांग कह दिता, नदाए सुल्तानी के जो दरगाह तो उच्ची आवाज़ आ रही है। गुरु नानक ने उसनूं रब्बी बाणी तुरकी बाणी कह दिता कि तुर दुर्गा सचखंड तो बाणी आउंदी है। सो इस वास्ते किसी ने बाणी कहता, गुरु नानक ने किसी अकथ कथा हरि कीर्तन करके भी बयान किया है, वो अकथ है, कथी नहीं जा सकती। तुन काट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की। परमात्मा का आवाज़ के जरिए हर आत्मा नूं जगा रहा है, लेकिन असी उस आवाज़ नूं सुन नहीं रहे। इसे नूं ही सूफी संत फरीद साहब ने कहा सीगा, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े के ही प्रीत। तू बाहर तक कहना है मैं इतने तीर्थ कर आया है, मैं इतने पाठ करदा है, मैं इतनियां धूनियां तपालियां हन, या मैं इतने सारे जप तप कर ले हन। वो प्यारिया जिहड़ा तेरे अंदर परमात्मा वो तो जागदा है, तू दुनिया की ऐशो इशर दे विच सुता पिया है। अगर तू ये भी कहना मैं डाढ़े नाल परमात्मा नाल प्रीत करदा है तो झूठ बोलदा है। वो जागदा है, जागदे पुरुष नाल लग के असीं जागना है जी। तुन काट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की। तू बैठ अकेला ध्यान तर, तो मिले निशानी शब्द की। किसी महात्मा तो रास्ता लेके फिर कोई परिवार दे विचों थोड़ा बहुता टाइम कढ़ के अकेला बैठ, तू उस आवाज़ नूं सुन सके जी। तू बैठ अकेला ध्यान तर, तो मिले निशानी शब्द की। तज आलस निंद्रा काहली, तू लगन लगा ले शब्द की। कमाई दे विच कामयाब होने वास्ते किन्ना चीज़ां नूं छड्डना है? आलस छड्ड दिओ। संत कहंदे आ 3 वजे उठो बई, अभ्यास च टाइम दिओ, क्योंकि दिने तुसीं आपदे कारोबार भी करने हैं, परिवार दे अंदर बच्चे भी सोए हुंदे हैं। उस वेले बीबियां नूं परिवार दियां नूं फायदा उठाउणा चाहीदा है। गली महल्ले दे लोग भी सुते हुंदे हैं, लेकिन उदों आलस है। तो कहंदे आलस नूं छड्ड दिओ। नींद दा जो झूठियां च मस्त आ उन्हां नूं भी छड्ड दिओ। तीसरी गल, जे असीं अभ्यास करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुता 3 वजे उठन लगते हैं, अभ्यास में 2 घंटे दिने हैं, फिर साडे अंदर मन जो है वो काहली पैदा करता है।
कि लो जी तेन 4 दिन हो गए अभ्यास करदे तेरा पढ़दा क्यों नहीं खुलिया। सोच के देखो तुसी, वो फिर काहली पैदा करता है। गुरु नानक कहते सहज पक्के सो मीठा, जल्दी काल की तरफों होंदा है। महाराज सावण सिंह तो एक अमरीकन नाम लेके गया, उन्हें हफ्ते तो पहला पहला जाके पत्र लिखिया कि जी मैं अजे कोई तरक्की नहीं करी, तरक्की होनी चाहिए है। महाराज सावण सिंह कहने लगे दुनियादारां दे मन जो है काले पै जाते हैं। तुसी देख लो गुरु नानक ने 11 साल अभ्यास किया, ठिकरियां रोड़ां दा विछौणे कीते, कि उन्होंने बिस्तरे नहीं होंदे सीगे। जिस महात्मा की आप बाणी पढ़ते हैं 18 साल इन्होंने अभ्यास किया। गुरु अमरदेव ने किली बन के वालों के नाल अपना अभ्यास करते रहे, भी नींद आ गई तो किते साडे अभ्यास च विघन ना पै जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी कई साल सोए नहीं सन। इस तरह महाराज सावण सिंह जी कई दिन अंदरों नहीं निकलते सन। अगर बैठे नींद आती सी तो उन्होंने खड़े होके एक ब्रागण बनाए सी, खड़े होके अभ्यास करते सीगे। लेकिन फिर भी 22 साल तो उन्होंने खोज ही की, फिर भी कई साल उन्होंने अभ्यास किया जो बाबा जी ने दसिया सीगा। इन्ना कुछ करके भी कहने लगे कि ये भी मेरी ताकत नहीं, ये बाबा जी की ही दया है। तो उन्हों का जो रसोईया सीगा भाई बंता सिंह, वो कहने लग्या कि जेड़ा सारी सारी रात जागदे सी वो किने अभ्यास किया होए। वो कहते भी ये तू कही चल, मेरा जो बनता है, क्योंकि संतां दे अंदर जो निम्रता है वही उन्हों का शिंगार हुंदी है। सो इस वास्ते महाराज सावण सिंह ने कितना अभ्यास किया। महाराज कृपाल सी तो उन्होंने अपने अभ्यास का थां ही रावी चुनिया सीगा। तो रावी के अंदर जाके गल जिडे जिडे पानी च खड़ के अभ्यास करते सी। एक दिन वो रात को रावी में जा रहे थे, कोई पुलिस वाला खड़ा सीगा। कि तू कित्थे जा रहा है इस वेले? वो कहता परमात्मा की याद में जा रहे हैं, तू भी चलना तो आ जा। वो आदा तुहानू ही मुबारक होवे। तो महाराज कृपाल सिंह गूंगे पहलवान की मिसाल देंदे हुंदे सीगे। गूंगा पहलवान बड़ा ही लाहौर के अंदर होया है। वो कहते सी जी वो दुनिया च क्यों मशहूर होया, वो सारी सारी रात मेहनत करता हुंदा सीगा। जे उसनू कोई मेहनत करने वाला होर पहलवान ना होंदा तो सारी रात हल्टी जोड़ी खिंची जाता सीगा। तो मेहनत तो बगैर कोई चीज असी प्राप्त नहीं कर सकते गए। सो सानू इस काहल तो बचना चाहिए कि स्वामी जी महाराज कहते आलस छड्डो, निंद्रा छड्डो और काली छड्डो, नतीजा गुरु ते छड्डो। वो जब मनास समझेगा वो अपने आप ही बे इंसाफ नहीं गा जी। तज आलस निंद्रा काहली, तू लगन लगा ले शब्द की। 5 शब्द कट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की। स्वामी जी महाराज कहते एक नहीं 5 शब्द बज रहे हैं। 5 शब्दों का सारे महात्मा ने जिक्र किया है। गुरु नानक ने भी 5 शब्दों का जिक्र किया है। कबीर साहब ने भी किया है कि 5 शब्द अनाहद वाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी। तो सारे महात्मा ने 5 शब्द तुनकार तुमता वाजे शब्द निशान है, उसनों 5 शब्द करके क्यों बयान किया है? शब्द तो एको ही है जो सचखंड तो उठता है, लेकिन जब जिथों दरिया निकलता है उदों पानी की होर आवाज़ हुंदी है। जब पत्थरां दे विच आके
ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जब साफ जमीन के उत्ते आके बहता है ਉਹਦੀ ਹੋਰ आवाज़ है। जब अगे समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ है पानी ना पानी टकराਉਂਦਾ है ਉਹਦੀ ਹੋਰ आवाज़ हो जाती है। दरिया ਇੱਕੋ ही है लेकिन ਉਹਦੇ जैसी उसनों जमीन मिली वैसी आवाज़ हो जाती है। शब्द सचखंड तो ਇੱਕੋ ही उठता है। 5 शब्द इस करके बयान किया कि सचखंड तो थले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मंडल है उन्हां मंडलों ਦੇ ਵਿੱਚ आ के वो आवाज़ उन्हां ਦੇ मुताबिक हो जाती है। तो इस वास्ते संत महात्मा कहते तू अंदर वड़ निर्णय कर लै जो कुछ असी तेनू कहने हैं। महाराज जी कहते होंगे सी कि छटी उन्होंने हवा च घुमाओ होर आवाज़ होएगी, जे जमीन ते मारोगे उसकी होर आवाज़ हो जाएगी। इस तरह शब्द जिस मंडल दे विच जांदा है नामदान दे वक्त संत अच्छी तरह दस दिंदे है किस मंडल का की शब्द है जी। 5 शब्द कट में बजे यह निर्णय कर ले शब्द की। गुर ज्ञान बताया शब्द का तू हो जा त्यानी शब्द की। संत सतगुरु सानू बाहर मुक्ति नहीं तोड़ देगे बई तुसी हुण तीर्थां दे तुरे फिरो, कोई जप तप करदे फिरो, वर्त रखदे फिरो या होर कर्म कांड दे विच नहीं वो सानू फसाउंदेगे। उन्हें शब्द दा दान दिता है, शब्द दा ज्ञान बताया है। साडा भी फर्ज बनता है कि तन मन दे नाल सच्चे हिरदे नाल पवित्र हिरदे नाल शब्द की कमाई करिए, नाम की कमाई करिए। गुर ज्ञान बताया शब्द का तू हो जा त्यानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुत कहा कोई न माने शब्द की। सब संतां ने शब्द नाम का होका दिता है पर बड़े थोड़े जे ही गिनती के जीव होंदे है जिहड़े शब्द की कमाई करन लगदे है। गुरु नानक देव जी ने कितनी दुनिया नूं जाके जगाउण की कोशिश की। कोई 300 आदमी ने ही उन्हां तो नामदान प्राप्त किया। तुसीं देख सकते हो उस जमाने दे विच यात्रा करन दे इतने साधन नहीं सन जिन्ने कि अज है। अज हवाई जहाज़ां दा युग है तो उदों जिन्नी उन्होंने यात्रा की बगदाद तक या लंका तक वो बहुत कठिन यात्रा सी। लेकिन कितने एक आदमी तैयार होए। इस तरह कबीर साहब सतयुग दे विच आए, उन्होंने भी जे गिणीए तो थोड़े जे आदमियों ने नाम लिया। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं संत आउंदे है शब्द नाम का होका दिंदे है लेकिन कौन सुनता है। बल्कि जद वो आउंदे है कोई कराइया कहता है, कोई उन्होंने होर लफ्ज के नाल बयान करता है, बल्कि उन्होंने किसी जगह बैठ के आराम नहीं करन दितागा जी। मैं शब्द शब्द बहुत कहा कोई न माने शब्द की। जन्म अकारथ खो दिया जो चढ़े न काटी शब्द की। 84 भोगन तो बाद इंसान का जामा परमात्मा ने एक तोहफा दिता सी, मौका दिता सी, इनू खो देना किन्ना असी आप दे नाल बेइंसाफी करते हैं। इदों वध होर बेइंसाफी हो ही नहीं सकती। तो स्वामी जी महाराज कहते जन्म अकारत एवें असी कौडियां दे भाणे विषे बकारां च लग के जन्म खो दिता, हीरे नूं गवा दिता। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, कौडियां विषे बकारां नूं कहंदे है। तो हीरे नूं खो दिता, हीरा जन्म सीगा। तो इस वास्ते आप कहते उन्होंने जन्म एवें खो दिता जो कभी चढ़े ना काटी शब्द की जी। जन्म अकारथ खो दिया जो चढ़े न काटी शब्द की।
राधा स्वामी कह चुप हुए, बिन पाग न तारा शब्द की। सारे संत जो देखते हैं कि दुनिया सुनने वाली थोड़ी है, वो खामोश हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते, मैं तुहानू हर पहलू तो समझा दिता कि जो दुनिया नू पालदी है, सता दे रही है, वो ताकत शब्द है। भागां तो बगैर असी वो शब्द नू प्राप्त नहीं कर सकते गे। हीरा जन्म इंसान दा जामा है, क्यों बई असी शब्द नाम की कमाई करनी है, असी जो उपाव करना है, क्योंकि साडे और परमात्मा के दरम्यान अगर कोई रुकावट है, वो साडे अंदर साडे मन दी है। तो मन नू वस करने वास्ते, समझाउण वास्ते ही असी परमात्मा की भगती करनी है। वो कहने लगे कि जिन्होंने शब्द नाम की पूंजी नहीं मिलेगी, वो इस संसार में की लैन आए। जिन्हों के उच्चे भाग होंगे है, उन्होंने के अंदर ही शब्द प्रगट होंदा है। उन्होंने के अंदर ही इच्छा होंदी है कि मैं शब्द की कमाई करा, नाम की कमाई करा। किस तरह महात्मा होका दे रहे हैं, साडे कन ते जून तक नहीं रींगदी गी, क्यों नहीं भी भाग नहीं गए, तो ये किहदे भाग लियावे। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहने लगे, जिस तरह होर संत खामोश है, मैं भी हुण चुप है, तुहानू हर पहलू तो समझा दिता है कि प्यारिओ, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, संतां तो बगैर नाम नहीं मिलदा गा, सत्संग तो बगैर सानू सोझी नहीं आउंदी, सानू साडीआं गलतियां दा पता नहीं लगदा गा। सो जिन्हें तिन्ने चीज़ां अख्तियार कर लियां, नाम और सत्संग, भजन सिमरन, ਉਹਦਾ मुक्ति का बीमा हो जाता है, वो मुक्ति के द्वारे ते पहुँच जाता है। सो सानू भी चाहिए है कि असी शब्द नाम की कमाई करिए। जो परमात्मा ने सानू मौका दिता है अपने प्यार का, अपनी संगत का और अपनी भगती का, सानू उस तो पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए है। जन्म अकारथ खो दिया, जो चढ़े न काटी शब्द की। राधा स्वामी बिन पाग न तारा शब्द